So, welcome students. Hope you are enjoying this chapter. So, she tells her name Edla Wilmanson. वो अपना नाम Edla Wilmanson भी बताती है. Wilmanson बताती है. And she even tells that her father came home and said that peddler wanted to sleep here in the forge, means mill tonight. So she took permission, and now she wanted to take her home. वो अपने घर में ले जाना चाहती. She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. She thought and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve." She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler आइडेंटिटी याद रखना, ये आइडेंटिटी याद रखना, आपको नेम नहीं है, उसके अलग अलग आइडेंटिटीज दिए हुए हैं. रैट ट्रैप पेडलर must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonishing blacksmith so much as glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I am sitting in a trap, and will never get out of it. The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade, whom he had run across so unexpectedly. So she looked at him very compassionately, means she was consoling for him. She was very sorry for him. With her heavy eyes, she noticed that from any angle, he does not seem any kind of captain or major. No, either he has stolen something else or he has escaped from jail. This was the idea came to Edla's mind. But anyways, she told us, Captain, you may be very much sure you will be allowed to leave us just as freely as you came. So she assured the peddler that whenever he wants, he can leave. As he is free to come right now, he will be free to go whenever he wants. So she said in such a friendly manner that the peddler, means Ragamuffin, he got confidence in her. And what he said? Then he replied that it would never have occurred to him that the family of Ironmaster would disturb him or bother him. And he decided to come. So he accepted the fur coat that the valet was having, that means servant was having. He threw his rags, means dirty clothes, and followed the young lady out to the carriage, without granting the without saying thanks to the blacksmith. And blacksmith was looking at glance. But while he was going to the manor house, means honor house, suddenly a evil idea, forebodings came to him. Why the devil he stolen the fellow's money? Neither he stolen money nor he would have been caught here. Now he got caught and will not get out of it. अब बात भी सही है. उसने जो है उसको बहुत दयावान दृष्टि से देखा, कंपैशन की तरह से देखा, बहुत दया आ रही थी. तो उसे लगा नहीं कि ये कहीं से कोई कैप्टन या मेजर है. ऐसा लगा या तो कोई चुरा कहीं कुछ, ये तो चोर, कोई चोरी करके आया या जेल से भागा. फिर भी उसने कहा, कैप्टन साहब, आपको अलाउ किया जाएगा जैसे आप अब हैं. आप कभी भी अपने मन मर्जी से आ जा सकते हैं. बस आज आप हमारे साथ क्रिसमस इवनिंग के लिए आ जाइए. उसने इतने प्यार से बोला, इतने रेस्पेक्ट देके बोला कि उसे उसमें कॉन्फिडेंस आया. उसने कहा, तो उसने भी ये बात कहा कि मुझे भी लगता नहीं कि आप मुझे या आपकी फैमिली कुछ परेशान करेंगे. ठीक है, मैं आऊँगा.
उसने फर कोट भी पहन लिया, अपने रैग्स भी फेंक दिए और यंग लेडी को फॉलो करना शुरू कर दिया। ब्लैक स्मिथ आँख फाड़ के देख रहा था, क्या है भाई, इतने लोग आए तो स्पेशल हो गया टीरी। पर रास्ते में जब वो जा रहा था, एक बात दिमाग में थी, जिस बेवकूफ ने कहा था व्हाई द डेविल, उफ, व्हाई द डेविल एक एक्सप्रेशन है, हे भगवान, जब सर आप पीटते हो इस तरह से, हे भगवान व्हाई द डेविल, क्या मुसीबत है, किसने कहा था वो पैसा चुराने के लिए, अब मैं ऐसे जाल में फंस गया हूँ, ट्रैप मतलब जाल, ऐसे जाल में फंस गया हूँ, आई विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, कभी बाहर नहीं आऊंगा इससे, ऐसा वो सोच रहा है, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, तो उसकी बात बता रहा हूँ। सो द नेक्स्ट डे तो द क्रिसमस इवनिंग था। आयरन मास्टर जो है क्या नाम है, डाइनिंग रूम, आयरन मास्टर डाइनिंग रूम पे आया ब्रेकफास्ट के लिए। वो बहुत खुश था, सेटिस्फाई था। मेरा पुराना साथी, मेरा ना पुराना दोस्त, मेरा दोस्त, पुराना दोस्त, जिगरी यार, लंगोटिया यार, दिल का यार, अब आपके दोस्त, अब आज आप क्लास 12th में, कल आप कॉलेज में होंगे, कोई कहीं होगा, कोई कहीं, 10-20 साल बाद, 5 साल बाद जब आप दोबारा कभी मिलो, मान लो 2 सहेलियां मिलती हैं, तो पहले तो आप इतना चिल्लाओगे सामने वाला गिर जाए, अरे तू धम, बस आई मीन ऐसा होता है जनरली, यू डू सो, तो हो जाएगा, सामने वाले क्या हो गया, अच्छा 2 दोस्त मिले, सो ठीक है, तो वो भी वैसी सेटिस्फैक्शन था उसका, वो अनएक्सपेक्टेड था कि आज मैं अब इतने सालों बाद अपने दोस्तों से मिलूंगा। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पर एक फ्रेंडशिप की बहुत प्यारी सी एक बहुत प्यारा एग्जांपल, वेरी नाइस एग्जांपल, श्री कृष्ण और सुदामा। सुदामा जी जब उनके घर आते हैं, द्वार पे खड़े होते हैं और द्वारपालों से जब कहते हैं, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, लेकिन उस टाइम जब वो आते हैं, व्हेन ही कम्स, ही मतलब लॉर्ड कृष्ण, जब लॉर्ड कृष्ण वहां पर आते हैं और जो उन्हें गले से लगा लेते हैं, टीयर्स फ्लोस थ्रू देयर आईज, उनकी आंखों से अश्रु बहते, और वही असली प्रेम की परिभाषा है। बट दैट डज नॉट मीन आप अपनी 10 साल 5 साल बाद अब दीपांशी, अगर दीपांशी गुज्जर या फिर आप दीपांशी जो तरु से मिल ले, तो उसकी आंखों में आंसू तो कम आएंगे, पहले एक ही काम होगा, एग्जाम्पल है, वो तो एक पहले एक ही काम होगा, there's only one thing, ए तू बता समथिंग, अच्छा समथिंग, हाँ उसने ऐसा कर दिया, ओह अच्छा, माय गॉड, तो दिस इज द योर वे ऑफ अट्रैक्शन, वे अट्रैक्शन होता है एक तरह का। सो द सेम happiness was with Iron Master. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around country selling rat traps. So thereafter what he decides, that it is a queer thing, that it's a queer that things have gone downhill with him as badly as that, said daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away with him, with the tramp clothes. So यहाँ पर वही बात होती है, what they decide. So Iron Master tells his daughter, the first he will give some food to him, पहले वो उन्हें कुछ खाना देगा कि उसकी बॉडी अच्छे से बने, ठीक है, चलो न्यूट्रिशन फूड ले, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन जैसा उसकी कंडीशन थी। फिर उसके बाद वो कहता है कि फिर मैं देन आई सी ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड सर्ट, कुछ अच्छा सा एक रेस्पेक्टेबल जॉब उसे मिल जाए, ये जो सेलिंग रैट ट्रैप्स की जगह पर वो कुछ ऐसा अच्छा सा काम करे। डॉटर बेटी बताती है कि इट्स अ क्वीर थिंग, अजीबोगरीब बात है, क्वीर मींस स्ट्रेंज, बड़ी अजीबोगरीब बात है, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। लास्ट नाइट, पिछली रात को
it doesn't seem that he is an educated man. मुझे लगा ही नहीं कहीं से educated man है. अरे you must have patience, धैर्य रखो बेटा. जैसी वो एकदम चकाचक होके आएगा ना, साफ सुथरा क्लीन ड्रेस, तब चीजें कुछ अलग ही होंगी. हाँ, something different. Last night he was naturally embarrassed. हाँ, last night he was embarrassed. Last night तो थोड़ा सा शर्मिंदगी हो रही थी. But the tramp manners will fall away. लेकिन ये जो ट्रैम्प है, ये जो ट्रैम्प मतलब इधर भटकने का जो इसका जो मैनर है, वो इसके ट्रैम्प क्लोज भटके हुए कपड़ों के साथ भी निकल गए होंगे. वो कपड़ा पहन के एकदम बढ़िया लगेगा, ना सही होके आएगा. डोंट वरी. Just as he sat, the door opened and a stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the ironmaster. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. But although his guest was now so well groomed, the ironmaster did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once the splendor had come to an end. So, the same thing happens. अब वही चीज होती है. जैसे ही डोर ओपन होता है, एज अ डोर ओपन, स्ट्रेंजर की एंट्री होती है एंड ट्रूली क्लीन, एकदम चकाचक साफ, एकदम टिप टॉप बाबू साहेब बनकर एकदम भाई साहब आते हैं. वैलेट ने उन्हें नहाया, नहलवाया, उनके बाल वाल काटे, शेविंग हुई, उनकी गुड लुकिंग सूट दिया था जो उनके फादर का था, वही दिया था, आयरन मास्टर का ही दे दिया था. उन्होंने व्हाइट शर्ट पहनी, स्टार्च कॉलर था, पूरे जूते पहने, एकदम जेंटलमैन ऐसा लग रहा था. सो बट ऑल्दो हिज गेस्ट, जबकि उसका जो गेस्ट था वो तो वेल ग्रूम था, आयरन मास्टर खुश नहीं था. जैसे उसने उसको देखा, ओ भैया, उसकी आंखें हो गई बड़ी बड़ी, पक्कड़ ब्रो, आंखें एकदम फाड़ते हुए, गुस्से में जब हो जाती है ना ब्रोज, गुस्से में जब गुस्सा आना शुरू होता है, ये कौन है, ऐसा वाला गुस्सा. तो इट वॉज इजी. अब वो समझ में आ गया था, वो समझ में आ रहा था कि दैट द स्ट्रेंज फेलो इज अनसर्टेन, कि ये वो आदमी नहीं है जो उसने सोचा. ओ माय गॉड, ये तो गलती हो गई, ओ माय गॉड व्हाट अ मिस्टेक. तो फर्नेस उस भट्टी की रोशनी में वो सही से देख नहीं पाया और उन्होंने गलत समझ लिया कि वो कैप्टन निल्स ऑल्फ है या कैप्टन वॉन्स्टेल है, क्योंकि वो ब्रॉड डे लाइट में खड़ा नहीं था, दिन दिहाड़े वो खड़ा नहीं था, दिन की रोशनी में था नहीं. तो ये अदरवाइज ये इम्पॉसिबल था उसके लिए कि उसको जांच लेना. एकदम से वो गुर्राया, थंडर्ड. व्हाट डू दिस मीन, इसका क्या मतलब है. स्ट्रेंजर हिला ही नहीं भैया, डिसमुलेट. उसने डिसमुलेट मतलब हिलने की कोशिश भी नहीं की, खड़ा रहा एकदम साफ. गया भैया, उसने वो जान गया था, उसने देख लिया था कि उसके अच्छे दिन खत्म हो गए. स्प्लेंडर, अच्छे दिन बढ़िया से गई भैंस पानी. बट दैट डज नॉट मीन वो भैंस लेके आया था, पानी में तो तब जाएगी. राइट. एनीवेज, हैव अ नाइस डे and I'll cover the rest part in my next video.